नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ, क्लिनिकल लीड सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ जीआई सर्जरी एंड लिवर सर्जरी। आज इस हेपेटाइटिस डे के मौके पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ डॉक्टर महेश गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट एंड चीफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एट धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वेलकम डॉक्टर महेश। डॉक्टर महेश, सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, हम हेपेटाइटिस से क्या समझें कि व्हाट इज़ हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, यानी कि लिवर के अंदर अगर कोई इंजरी होती है, भले ही ये वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो और अल्कोहल की वजह से हो या किसी और वायरस की वजह से हो, देयर इज ए इन्फ्लेमेशन इन द लिवर। इट कैन बी सेड देयर इज ए इन्फेक्शन इन द लिवर और देयर इज ए इन्फ्लेमेशन इन द लिवर, दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। इसमें अक्सर लिवर में हल्का सा स्वेलिंग आ जाना या हल्का सा ये कह लें लिवर इज ए लिटिल वीक, दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। ओके, तो लिवर में कमजोरी आना एक प्रकार का हेपेटाइटिस का लक्षण है। डॉक्टर महेश, फिर हमें हेपेटाइटिस डे की ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में करोड़ों लोग, लाखों ही नहीं करोड़ों लोग हेपेटाइटिस से ग्रसित हैं, एंड मैनी ऑफ द पीपल डोंट नो दे आर हैविंग हेपेटाइटिस इन्फेक्शन। सो टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम, टू मेक देम नो अबाउट हेपेटाइटिस सो दैट दे कैन सीक मेडिकल हेल्प। अगर उनको हम बताएंगे कि उनको हेपेटाइटिस है, जिसका इलाज किया जा सकता है, जिससे बचा जा सकता है, तो वो लोग मेडिकल हेल्प लेंगे, आसपास के लोगों को बताएंगे। तो यही जानकारी क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट द अवेयरनेस, एंड देर आर सम मिथ्स, टू ब्रेक दिस मिथ्स, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 28th July, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड। Okay, Dr. Mahesh, going further, what are different types of hepatitis? So world hepatitis is a big term. Hepatitis means there is inflammation or infection in the liver. So it may occur because of viruses, it may occur because of drugs, and it may occur because of alcohol, and there may be some other injuries also. So most important of these are viruses and alcohol induced hepatitis. So we discuss more about viral hepatitis because that can be prevented, that can be cured very nicely. Obviously for alcohol induced hepatitis we know what to do. We should not take excess of alcohol. If anybody is taking alcohol and he has hepatitis, he should stop taking alcohol. So we discuss about viral hepatitis. Viral hepatitis is again a broad term. So viral hepatitis can be because of hepatotropic viruses, means the viruses which cause only hepatitis, and it may be because of other viruses like chikungunya virus, chickenpox virus, even coronavirus. All these can cause infection into the liver and leading to viral hepatitis. ठीक, डॉक्टर महेश, आगे की तरफ हम बढ़ें, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस? Hepatitis can be asymptomatic, it can have mild symptom, it can have moderate symptom, even sometimes it may be life threatening also. So depending on symptoms we categorize hepatitis to mild hepatitis, moderately severe, and severe hepatitis, and sometimes viral hepatitis can cause acute liver failure also. So we broadly divide hepatitis into acute viral hepatitis and chronic viral hepatitis, and depending on that we manage the disease. So now the next question comes, what is chronic and what is acute? So acute hepatitis means if somebody is getting infection. Suppose a patient gets hepatitis infection today, and this infection will call acute hepatitis for 6 months. If the infection get over within 6 months, we call it acute hepatitis. If the infection, like in some hepatitis like hepatitis B and hepatitis C, these are type of viruses, if it persists more than 6 months, this 6-month criteria is taken to define chronic hepatitis. Means any viral hepatitis which is persisting in liver for more than 6 months, or any inflammation in liver which is persisting for 6 months is called chronic hepatitis. डॉक्टर महेश, हम लोग हमेशा अक्सर ये सुनते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई। Yes. तो इनके फैलने के कारण क्या हैं, किस प्रकार ये फैलते हैं, ये थोड़ा सा समझना चाहूँगा आपसे। So mainly we discuss about viral hepatitis A to E, and broadly we divide these viruses into 2 categories for the sake of understanding. So we categorize in 2 categories. One category is hepatitis A and E category, and other is hepatitis B and C category. So hepatitis A and E are 2 viruses which spread by fecal-oral route. That means हमारे खाने और पीने के, यानी कि हमारे मुंह के रास्ते से हमारे शरीर में जाते हैं, आंतों में जाते हैं, आंतों से होते हुए लिवर में जाके इन्फेक्शन करते हैं।
तो ये है वायरस हेपेटाइटिस ए और ई, जो यानी खाने पीने जो इन्फेक्टेड खाना है, दूषित खाना है, पानी है, उससे फैलते हैं। ए और ई अक्सर एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, यानी कि जब हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन होता है कुछ समय के बाद वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। और हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं समझने के हिसाब से। तो पहली कैटेगरी है हेपेटाइटिस ए और ई की। ए और ई का जो इन्फेक्शन है वो फीको ओरल रूट से फैलता है, यानी कि जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अगर उस खाने और पानी में ए और ई का इन्फेक्शन है तो हमारे आंतों में जाएगा, आंतों से होते हुए लिवर में जाएगा। और ए और ई का जो इन्फेक्शन होता है, यानी हेपेटाइटिस ए और ई का जो इन्फेक्शन है वो अक्सर हेपेटाइटिस एक्यूट हेपेटाइटिस करता है, यानी कि ये वाली हेपेटाइटिस कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों में ठीक हो जाती है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 99.9% ये रिकवर हो जाती है। दूसरी कैटेगरी है हेपेटाइटिस बी और सी की। हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन ब्लड के रास्ते से फैलता है, यानी कि इसके जो फैलने के रास्ते हैं उसमें होता है नीडल स्टिक इंजरी, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट का लग जाना, सेक्सुअल ट्रांसमिशन और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। और इसमें ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में अधिकतर केसेस मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के होते हैं, यानी कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है तो वह इन्फेक्शन उस मदर से कैन बी ट्रांसमिटेड टू द न्यूबॉर्न। सो दिस इज टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन क्रोनिक हेपेटाइटिस करता है और ये परसिस्ट करता है, जो बाद में लिवर सिरोसिस का कारण बनता है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो 2 कारण हैं। पहला कारण है हेपेटाइटिस ए और ई वाला, जो कि फीको ओरल रूट से फैलता है, खाने और पानी से। दूसरा रास्ता है ब्लड के थ्रू, ब्लड एंड फ्लूइड कॉन्टैक्ट्स। तो इसमें हेपेटाइटिस बी और सी का आता है, जिसमें ये हमारे स्कैल्पल इंजरीज, नीडल स्टिक इंजरीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यूरिंग सर्जरीज, इवन जब हम नाई से बाल कटवाने जाते हैं तो इफ देर यूज रेजर्स, उसके थ्रू भी हो सकता है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन सो दैट वी कैन एस्केप द इन्फेक्शन। तो डॉक्टर महेश, इसी सीक्वेंस में अगला सवाल ये आएगा, आपने मेरे इस सवाल का आंसर कुछ पहले ही कर दिया है कि हमें क्या प्रिकॉशंस, व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक टू स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ हेपेटाइटिस। ओके, तो हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे HIV के इन्फेक्शन के लिए हम लोग लेते हैं सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं। दूसरा, एवरी प्रेग्नेंट लेडी शुड बी चेक फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। ड्यूरिंग सर्जरीज देयर शुड बी चेकिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। देयर शुड बी मैस स्क्रीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। वी शुड यूज डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उनको प्रॉपरली स्टरलाइज करना चाहिए। नीडल स्टिक इंजरी से बचना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में अगर नीडल स्टिक इंजरी होती भी है उसको रिपोर्ट करना चाहिए। उसके लिए जिस पेशेंट को होती है, जिस पर्सन को होती है, हेल्थ केयर वर्कर को होती है, उसको चेक करवाना चाहिए। और दूसरा ये है कि हेपेटाइटिस ए और बी का एक अच्छा वैक्सीन भी हमारे पास है, तो इनसे बचने के लिए वैक्सीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हेपेटाइटिस बी और ए ना हो। डॉक्टर महेश, आपने अभी नाम लिया सिरोसिस। हम सिरोसिस से क्या समझे? व्हाट शुड वी अंडरस्टैंड बाय सिरोसिस? हाउ इज इट गोइंग टू इफेक्ट मी? ओके, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी जब बहुत सालों तक परसिस्ट करता है बॉडी में, इट कैन लीड टू लिवर डैमेज ग्रेजुअली। यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन लिवर में है किसी को, तो धीरे धीरे वह लिवर को खराब करता रहता है। तो लिवर की जो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, डे बाय डे दीज आर गेटिंग डैमेज, सेल डेथ होती जाती है। व्हेन देयर इज सेल डेथ तो लिवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। एक एक्सटेंट से ज़्यादा जब लिवर अपना काम करना कम कर देता है, वह नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कैरी कर पाता है, तो उसको हम सिरोसिस बोलते हैं। यानी कि क्रोनिक हेपेटाइटिस से आगे की स्टेज है लिवर सिरोसिस, यानी कि लिवर का खराब हो जाना। सो सिरोसिस इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर हेपेटाइटिस बी और सी का पेशेंट सिरोसिस में तब्दील नहीं होता है। देयर आर फ्यू पेशेंट्स विच मे गेट सिरोसिस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि सिरोसिस को डेवलप होने में कई सालों लगते हैं, परंतु हमें ये नहीं पता कि कौन सा मरीज सिरोसिस में कन्वर्ट होगा या सिरोसिस डेवलप होएगा। तो हर हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट को यह मानते हुए कि देयर मे बी अकरेंस ऑफ सिरोसिस इन फ्यूचर, वी हैव टू ट्रीट एवरी पेशेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो सर, मैं ये समझा आपकी बातों से कि सिरोसिस एक एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है। राइट सर। जिसमें मतलब हम ये मान के चले, मोटे मोटे शब्दों में हम बोलें कि लिवर फेल हो रहा है। यस सर, यस। डॉक्टर महेश, आपने अभी एक और पॉइंट लिया वैक्सीन का, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। ये वैक्सीन कब कब हमें लेनी चाहिए और कब, किस हिसाब से लेनी चाहिए? सो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का मेन मकसद यही है कि पब्लिक में ये अवेयरनेस है, तो
अवेयरनेस हो जाए कि हेपेटाइटिस से कैसे बच सकते हैं, और वैक्सीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ प्रिवेंटिंग द डिजीज। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास केवल 2 हेपेटाइटिस हैं जिनका वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए एंड बी। सी का वैक्सीन अभी बन नहीं पाया है और ई का वैक्सीन भी अभी नहीं बन पाया है। तो हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीन है वो बचपन में ही आजकल लगा दिया जाता है, उसके 2 डोज देनी होती है, छोटे बच्चे को लगाते हैं, जिस प्रकार से बाकी वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी शायद इंक्लूडेड है। यूनिवर्सल में नहीं है पर ऑप्शनल है, उसमें लगवाया जा सकता है। तो समय के अंतराल पे 2 वैक्सीन लगाने होते हैं, उससे हेपेटाइटिस ए का प्रिवेंशन लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। एक बार लगाया वैक्सीन फिर दूसरा डोज लगते हैं, उस दोनों डोज लगने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है, तो हेपेटाइटिस ए फ्यूचर में नहीं होता है। सो वी कैन प्रिवेंट हेपेटाइटिस ए इन फ्यूचर। दूसरी बात आती है हेपेटाइटिस बी, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन हेपेटाइटिस ए बिकॉज इट कॉजेज क्रॉनिक हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस एज वी डिस्कस प्रीवियसली। सो हेपेटाइटिस बी के लिए हमें 3 वैक्सीन लगवाने पड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं 016। इसको समझना है कि 0 मीन्स फर्स्ट डोज एट 0, देन सेकेंड डोज आफ्टर 1 मंथ, देन थर्ड डोज आफ्टर 6 मंथ। सो मैं ये कहूँगा, आई विल रिकमेंड दैट एवरी हेल्थ केयर वर्कर, एवरी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, एवरीबडी शुड गेट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, बिकॉज डेली रूटीन में हम लोग हेपेटाइटिस बी के पेशेंट से एक्सपोज होते हैं। इफ वी आर गेटिंग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, सो एटलीस्ट वी कैन प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी इन आवर सेल्स। सो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी बचपन से लगता है, ये आजकल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है, 3 डोज लगती हैं, और अडल्ट में भी लगवाया जा सकता है, किसी भी एज पे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया जा सकता है, और बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, अच्छी एंटीबॉडीज बनती है। और अभी तो सब लोग समझ गए हैं एंटीबॉडीज का मीनिंग। सो एक बार एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो फिर हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है और प्रिवेंट हो जाता है हेपेटाइटिस बी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग टू माय माइंड इज, आई हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशंस बट स्टिल आई गेट हेपेटाइटिस बी और सी, व्हाट शुड आई डू? इफ समबडी इज डायग्नोस्ड टू हैव हेपेटाइटिस बी और सी, तो पहली बात यह है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। आजकल लोग ये सोच लेते हैं कि कोई इलाज हो ही नहीं पाएगा और होपलेस हो जाते हैं कि हेपेटाइटिस बी और सी, तो जैसे लोग कहते हैं काला पीलिया हो गया, इसका तो इलाज नहीं है, लीवर खराब ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी अगर किसी को पता चलता है इन्फेक्शन का, तो घबराना नहीं है, सीधा अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी दोनों का अच्छा इलाज संभव है। ज़रूरत है डॉक्टर से मिलने की, उसके लिए हमें ये चेक करना होता है कि हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन कितना है, वायरस हमारी बॉडी में कितना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि उसने लिवर को डैमेज तो नहीं किया है, तो एक वायरल लोड करवाते हैं कितना वायरस है, दूसरा अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और कुछ टेस्ट और होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इन्फेक्शन किस लेवल पे है। उसके हिसाब से हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं हेपेटाइटिस बी और सी की, जिनसे हम हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये दोनों चीज़ें ट्रीटेबल हैं, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट इज़ फीजिबल। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ कमिंग टू माय माइंड इज़, I have got hepatitis B. What about my family? Do I have to get them tested, or there is some protocol about that? Very important question, Dr. Neeraj. Usually we miss that point. If somebody is getting tested for hepatitis B, suppose किसी को hepatitis B का पता चला कि आपको hepatitis B का इन्फेक्शन है या C का इन्फेक्शन है, so first thing we should do in our family is all our family members should get tested for hepatitis B and C, because सपोज आई एम गेटिंग हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, मुझे हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन पता चला है आज, तो मुझे कहाँ से आया? हो सकता है मुझे अपनी फैमिली से आया, यानी मुझे अपनी मदर से आया हो। अगर मेरी मदर को हेपेटाइटिस बी है तो बाकी भाई बहनों को भी हो सकता है। सो आई एडवाइज ऑल द ब्लड रिलेटिव्स, मीन्स पेशेंट के सिबलिंग्स, भाई बहन, पेशेंट के पेरेंट्स, पेशेंट की वाइफ एंड पेशेंट के बच्चे, इन सबको हेपेटाइटिस बी के लिए और हेपेटाइटिस सी के लिए चेक करवाना चाहिए। तो पूरे परिवार के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज अगर है तो देना है हमें, उनको प्रॉब्लम है तो। ये तो उन लोगों में हुआ जिनमें लक्षण है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता। if they are asymptomatic, what should I do? There are lot of patients of hepatitis B and C which are asymptomatic. Even hepatitis A and E can be asymptomatic, but mainly we are discussing B and C. Hepatitis B or C because chronic hepatitis करते हैं. Chronic hepatitis can be very asymptomatic and it can be very mildly symptomatic. There may be symptoms which are non-specific, जैसे हल्का सा बुखार लगना या हल्का कमजोरी लगना या शरीर में दर्द होना, इस टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं जो कि हम यूजुअली इनको तवज्जो नहीं देते हैं. तो ये सिम्टम हो सकते हैं और बहुत सारे केसेस में एसिम्टोमेटिक होते हैं. तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि मुझे इन्फेक्शन है. जब हम रूटीन केसेस के लिए यानी किसी सर्जरी से पहले या
किसी हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट ट्रीटमेंट होना है उससे पहले अगर हम चेक करते हैं तो रूटीन में हमें पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी है या सी है। उसके बाद हम पेशेंट को बताते हैं कि भाई आपको ये इन्फेक्शन है और हो सकता है ये काफ़ी टाइम से हो, कोई सालों से हो, तो फिर उसके लिए हम डिटेल चेकिंग करते हैं। तो इन शॉर्ट इट मीन्स कि बाय फाइंडिंग एसिम्प्टोमेटिक पीपल वी आर कैचिंग देम, वी आर ट्रीटिंग देम एंड वी आर स्टॉपिंग फर्दर ट्रांसमिशन। Patient is present in community, is asymptomatic. If we test community, I suggest there should be mass screening of the community. If we screen lot of people in community, we will find many people with infection, because in India 2 to 5% of the population is infected with hepatitis B and around 1% of the population. This is a huge, means hepatitis B there are around 5 crores people, and for hepatitis C there are 1 crore, means 5 crores 6 crores people are infected with this type of hepatitis, which we can find and treat them. It's a huge burden. It's Yeah, a huge burden in India. It's a huge burden. अभी रुके सर, ये तो बात हुआ हेपेटाइटिस ए टू ई का। मैं आपसे थोड़ा सा इस विषय में भी जानना चाहूँगा अबाउट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, एंड आजकल कोरोना वायरस के बारे में भी हमने सुना है कि वो भी हेपेटाइटिस करता है। Yes. इसके विषय में कुछ ज्ञान। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस मीन्स जो लोग अल्कोहल कंटिन्यूसली लेते हैं, रेगुलर ड्रिंक करते हैं या एक लिमिट से ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में अल्कोहल की वजह से लिवर में डैमेज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। शुरू में ये भी एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसका पता नहीं चलता है। धीरे धीरे जब जॉन्डिस आना शुरू होता है या लिवर सिरोसिस डेवलप होना शुरू होता है, तब पेशेंट को पता चलता है कि अल्कोहल की वजह से लिवर डैमेज हो गया है, तो दिस इज कॉल्ड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस को बचाने का एक ही तरीका है, आपको अल्कोहल बंद करना पड़ेगा। अल्कोहल बंद करने के बाद कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट से, डॉक्टर की सलाह से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस को रिवर्स भी कर सकते हैं। सिरोसिस होने के बाद रिवर्स करना इज डिफिकल्ट। सिमिलरली अभी रिसेंटली जैसे जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन चल रहा है, कोरोना वायरस इटसेल्फ कैन कॉज हेपेटाइटिस, दो द हेपेटाइटिस कॉज्ड बाय कोरोना इज सिंपल, मीन्स माइल्ड। देयर इज अ डिरेंजमेंट ऑफ लिवर फंक्शंस, बट दिस इज सेल्फ लिमिटिंग, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो कोरोना के लिए सपोर्टेड ट्रीटमेंट करते हैं, उसी ट्रीटमेंट से लिवर जो इन्फेक्ट है वो भी ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार दूसरे कुछ वायरसेस भी हैं, जैसे चिकन पॉक्स वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है, डेंगू वायरस है, ये भी हेपेटाइटिस करते हैं, उनको भी हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है और उनके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, वो भी रिकवर कर जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे निकल के आया कि एटलीस्ट कोरोना वायरस और ये जो दूसरे आपने वायरसेस बोले, इनसे जो होने वाला हेपेटाइटिस है दैट इज माइल्डर, एंड वी शुड नॉट बी वरिंग मच अबाउट, नॉर्मल ट्रीटमेंट से उनकी दैट इज गेटिंग करेक्टेड। सर, इसको आगे फर्दर बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग टू माय माइंड इज अबाउट डाइट। लोगों के बहुत भ्रांतियां, आई शुड से मिथ्स हैं अबाउट द डाइट कि आपको हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस अगर मैं बोलूँ लोगों को मानना है कि आपको पीलिया हो गया तो यू डोंट हैव टू ईट दिस, यू हैव टू टेक दिस, व्हाट डू यू से अबाउट इट? हमारे पास अक्सर जब पेशेंट आते हैं जॉन्डिस लेके, एक्यूट वाले हेपेटाइटिस लेके या क्रोनिक हेपेटाइटिस, तो उनके मन में एक ये होती है कि खाने से ज़्यादा परहेज़ करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, हल्दी नहीं खानी है, या फिर उबला हुआ खाना खाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वायरल हेपेटाइटिस मीन्स लिवर में इन्फ्लेमेशन, लिवर ऑलरेडी कमज़ोर है, अगर उसको हम डाइट नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे तो वो और कमज़ोर हो जाएगा। साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत अच्छी डाइट देनी चाहिए, कोई विशेष परहेज़ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा प्रोटीनेशियस हेल्दी डाइट देने से लिवर की रिकवरी अच्छी होगी। बॉडी को, लिवर को डिजीज से फाइट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और हम अगर पेशेंट को उबला खाना देंगे, अब बिल्कुल फैट बंद कर देंगे, खाना टेस्ट नहीं लगेगा तो पेशेंट खाएगा नहीं और कमज़ोर होता जाएगा। तो कमज़ोरी होने का मेन कारण होता है डाइट रेस्ट्रिक्शन। अगर अच्छी डाइट देंगे तो रिकवरी अच्छी होगी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि फैट बंद करने की बजाय पेशेंट को बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट देनी चाहिए। फ्लूइड का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन डाइट, ये सब देना चाहिए। हालांकि एक बात ज़रूरी है कि सिरोसिस अगर हमें हो जाता है, अगर किसी पेशेंट को सिरोसिस हो जाता है, तो उस पेशेंट में हम रेस्ट्रिक्शन करते हैं सॉल्ट का। सॉल्ट से बॉडी के अंदर का प्रेशर कुछ बढ़ जाता है, इसलिए हम सॉल्ट का रेस्ट्रिक्शन करते हैं एंड हाई प्रोटीन डाइट की सलाह देते हैं। तो कोई भी पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस है, उसको ये धारणा त्याग देनी चाहिए कि उसको बहुत सारे परहेज करने हैं, बल्कि उसको ज़्यादा अच्छा खाना लेना चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट इज द मोस्ट, बल्कि मैंने ये देखा कि बहुत सारे हमारे फिजिशियंस, डॉक्टर्स लोग भी ये बोल देते हैं कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, उबला खाना खाइए। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। मैं अक्सर पेशेंट को सबसे पहले डाइट की सलाह देता हूँ कि भी आप अच्छी डाइट लीजिए ताकि आपका हेपेटाइटिस जल्दी रिकवर हो। सर, अभी क्योंकि हम ट्रीटमेंट की तरफ आ रहे हैं,
मैं आपसे ये सिरोसिस जो आपने बोला एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर इट? सिरोसिस मीन्स एंड स्टेज लिवर डिजीज, इट इज़ राइट, बट सिरोसिस में भी कई स्टेजेस हैं। जैसे उसको हम डिवाइड करते हैं ए, बी और सी में, यानी थोड़ा सिरोसिस है, थोड़ा ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कि लिवर कितना डैमेज है। सपोज लिवर ए स्टेज में, इसमें एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता चलता है कि लिवर कितना % खराब है, बट मोटा मोटी हम डिवाइड करते हैं कि लिवर थोड़ा खराब है, थोड़ा ज़्यादा खराब है या बहुत ज़्यादा खराब है। अगर लिवर स्टार्टिंग फेज में है, यानी कि थोड़ा खराब है, तो डाइट एंड सपोर्टेड ट्रीटमेंट इज दैट मच विच इज रिक्वायर्ड। जब थोड़ा ज़्यादा लिवर ख़राब होता है तो अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है लिवर में, उसके कुछ लिवर डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन आने शुरू होते हैं, जैसे पेट में पानी आ जाना या जॉन्डिस आ जाना, प्रोटीन की कमी हो जाना। तो डाइट के साथ साथ हम कुछ दवाइयाँ भी देते हैं जिससे सिरोसिस के पेशेंट को तकलीफ ना हो और कॉम्प्लिकेशंस जो आए हैं वो ठीक हो जाएं। जब एंड स्टेज लिवर डिजीज हो जाती है, मीन्स सिरोसिस एट द लास्ट स्टेज, व्हेन मेडिसिन आर नॉट वर्किंग, डाइटरी सप्लीमेंट्स के बावजूद भी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, रीनल डैमेज होना शुरू हो गया है, या बेहोशी की गफलत की हालत होती है, टॉक्सिन जो होते हैं हमारे ब्रेन में पहुंचने शुरू हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड स्टेज लिवर डिजीज, एडवांस सिरोसिस जिसको बोलते हैं। उस स्टेजेस में लिवर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन, देन वी हैव टू गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। ओके, तो सर लिवर ट्रांसप्लांट आजकल काफ़ी इजीली अवेलेबल है। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि मैंने लिवर ट्रांसप्लांट करा लिया है, मेरा प्रोग्नोसिस आने वाला समय कैसा रहता है? लिवर ट्रांसप्लांट एंड स्टेज लिवर डिजीज के पेशेंट के लिए इज अ वेरी गुड ऑप्शन। लिवर ट्रांसप्लांट के अगर हम डिटेल में जाएं, शॉर्ट में ही बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें लाइव डोनर ट्रांसप्लांट हो सकता है और कैडावरिक ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि फैमिली मेंबर जो लाइव हैं, जो उनका लिवर ठीक है, वो लिवर का कुछ हिस्सा अपने रिश्तेदार मरीज को दे सकते हैं, जिससे उनका जो लिवर की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। और जो डोनर होता है उसको कोई नुकसान नहीं होता है इससे, क्योंकि जो हेल्दी लिवर होता है वो ग्रो कर जाता है। तो लिवर का जो टुकड़ा हमने मरीज को दिया है उसकी का भी काम चल जाता है और डोनर को भी नुकसान नहीं होता है। दूसरा होता है कैडावरिक ट्रांसप्लांट, यानी कि जो कैडावरिक बॉडी होती है, डेड बॉडीज होती है, जिनमें ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, वहाँ से हम लिवर को लेते हैं और पेशेंट को दे दिया जाता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद देयर इज अ वेरी गुड, मोर देन 90% सक्सेस रेट, पेशेंट विल डू फाइन। There are some precautions, some medicines are advised which patient has to take for some time, or patient can do his normal daily routine activities very nicely. So transplant is Very good a option. very good Very option, good option, and it is yes. fairly successful, Fairly and you successful. can live a So normal widely healthy available, life. very successful and nicely done nowadays. Normal healthy life can be Yes. led by you. Sir, before we end the discussion, message for the hepatitis B patients and a message for the general public. It's a good thing. Hepatitis Day is for message. I will convey a message to everybody that whoever is working in healthcare department, they must get hepatitis B vaccine, and everybody in community should also get hepatitis A and B vaccine for their children. And those who are exposed to hospitals, they should also get hepatitis B vaccine. In adults, I will not recommend to get hepatitis A until unless it is highly recommended in some situations. बट हेपेटाइटिस बी का और ए का वैक्सीन हर बच्चे को लगवाना चाहिए। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं पेशेंट्स के, हेपेटाइटिस बी और सी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको हेपेटाइटिस बी चेक करवाना चाहिए। अगर किसी को पता है कि मुझे हेपेटाइटिस बी या सी है, तो उनको बैठे नहीं रहना चाहिए ये सोच के कि इसका इलाज नहीं हो सकता, या मुझे आज सिम्टम नहीं है तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये दोनों बातें नहीं सोचनी चाहिए। दोनों ही केसेस में हमें डिटेल वर्कअप हमारा कराना चाहिए और हेपेटाइटिस बी और सी का एक ट्रीटमेंट अच्छे से करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ए और बी का बचाव का तरीका अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी और सी का बहुत अच्छा इलाज संभव है। और अगर किसी को लिवर सिरोसिस भी डेवलप हो गया है तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसका इलाज करना चाहिए, सो दैट वी कैन प्रिवेंट एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज। एग्जैक्टली। सो आज हमने जाना ऑन दिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, लिवर हेपेटाइटिस से कैसे बचा जाए, कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने लक्षण होते हैं। इन सब जानकारियों के लिए डॉक्टर महेश, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। थैंक यू डॉक्टर नीरज। नमस्कार। नमस्कार।